इंडिया इंटरनेशनल थर्ड बुलियन समिट में आज के हमारे चीफ गेस्ट इस समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए दिल्ली से आए शक्तिकांता दास साहब का जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। साथ ही साथ जे.के. राडू साहब, एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, उनके लिए भी दिल्ली से स्पेशली इवेंट के लिए आए। मिस्टर रजनीश कुमार जी, एमडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मिस्टर ओपी भट्ट, एक जाना माना नाम, हमारे डायनामिक एक्स चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, श्री सोम सुंदरम साहब, जिनका सपोर्ट हमेशा एसोसिएशन के साथ कोई भी अच्छे इवेंट के लिए, गोल्ड इंडस्ट्री के लिए उन्होंने अपने टेन्योर में आईबीजे को एक नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए हमेशा सपोर्ट किया। ऐसे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हमारे इंडिया हेड सोम सुंदरम साहब, मिस्टर कपिल वाधवान जी, डीएचएफएल के चेयरमैन, मिस्टर मेहुल चौकसी, फिक्की चेयरमैन, हरिशंकर पंड्या जी, हमारे जीजीपीसी के चेयरमैन, और यहाँ पे आए हुए सभी फेटर्निटी के जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री एसोसिएशन से सभी आज मेरे इंडस्ट्री के भाइयों का, सभी का आज का थर्ड इंडिया इंटरनेशनल बुलियन समिट में स्वागत है। इंडस्ट्री के इश्यूज के ऊपर आज ये जो समिट हमने रखी है 3 पैनल डिस्कशंस में, जिसमें पूरे इंडस्ट्री से, ओवरसीज से, इंडियन मार्केट से, फ्रॉम माइनिंग टू रिटेलर्स टू होलसेलर्स टू बैंकर्स, जितने इश्यूज हैं उसको पूरे डे में एक समिट के रूप में इंडस्ट्री के जितने इश्यूज है उसको सॉल्व कर सके, ये समिट का थर्ड टाइम इसका आयोजन किया गया। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन हमने एक 10 मिनट का सर बनाया है, जिसमें पूरे इंडस्ट्रीज की इश्यूज को कवर करने का सोचा है। तो मैं चाहूंगा कि वो प्रेजेंटेशन पहले प्ले किया जाए, कि जिसमें पूरे इंडस्ट्री का लास्ट 60 साल का, 70 साल का गोल्ड इंडस्ट्री का इतिहास को हमने एक साथ कवर किया है 10 मिनट के अंदर। तो मैं कोशिश चाहूंगा कि आप वो प्रेजेंटेशन प्लीज प्ले करें। Market has seen sea changes in the last few years. Various policy changes, changes in market dynamics, prices and international conditions have always kept bullion and jewelry market in the limelight. However, the industry has been embezzled at times and confused at times. One of the main reasons is that the representation of this industry has always been fragmented. The Bombay Bullion Association was renamed as India Bullion and Jewelers Association (IBJA), with focus on Indian jewelers as well as bullion dealers to represent them completely and appropriately to the government at the national level. The Indian market has had a long history for gold and silver. For a variety of reasons, Indians have an insatiable appetite for gold. The restrictions and controls to curb consumption of gold have been in existence for one reason or the other. The Gold Control Rules 1963 and the Gold Control Act 1968 in the pre-1991 era of India's trade policy were marked by a regime of restrictions, controls, permits and licenses. The import policy was largely driven by foreign exchange scarcity. The import of gold was prohibited except for use by jewelry exporters, which led to large-scale smuggling of gold into India. And the 1960s and 1970s saw the emergence of notorious names in smuggling. The economic reforms of the 90s almost brought gold smuggling to a grinding halt. After 20 years, in January 2012, the government switched from specific to ad valorem duty, from rupees 300 per 10 grams to 2%. This duty was further raised gradually and brought to 10%. Besides, in the last 5 years or so, a lot of changes have been brought about in this industry. Some good, but a few of them so lethal that they threaten the very existence of business. Imports of bullion under letter of credit is restricted to only 90 days, thereby effecting credit for trade for a longer duration. This does not make sense for jewelry manufacturing. Participation by private sector was made difficult by controlling free imports by private nominated agencies.
Nominated agencies were restricted from selling in the domestic markets in 2012, thereby creating an imbalance in demand and supply. So bad was the situation that the premiums on gold went up to as high as $160 to $190 per ounce, or 10%. Only some banks and canalized agencies made windfall profits. Any international trade activity that adds value to that country's economy gets shifted to India through an SEZ. Trading through SEZ was enabling the government to earn more revenues and keep a tab on what's happening. All this has now flown abroad due to banning of trading business in SEZ since May 2013. And more worryingly, the production shifted to EOUs where the monitoring is difficult compared to SEZ. And with such high duty, the pilferage of gold from EOU to DTA has become widespread to such an extent that it is harming growth of domestic bullion trade. Every month, on an average, at least 12 tons of gold is imported to EOU. But is there a market for some 150 tons of gold jewelry to be exported annually? There are restrictions on supply to SEZ from DTA for private players. One cannot be in business of importing gold in SEZ and supply to SEZ units. Thus, many jewelry units have to import small consignments of 5 kgs even when they need only 1 kg. Gold duty has increased from less than 2% to 10%. The impact has been severe and long-lasting. To reduce CAD and to increase revenues, import duty was increased to an extent that smuggling has started again in India, and it has led to the devaluation of the rupee. Such huge gaps have supported parallel markets, and this has given rise to a large number of scams involving illegal remittances. Duty should not be so high that parallel markets become strong and established. There is difficulty in duty working due to ad valorem changed from a basic amount. The fact that duty is determined by customs every 15 days on the basis of prices has led to speculation on the basis of expectation of duties. Since duty prediction is a matter of market prices, there is a lot of controversy on the way the duty amount is determined. 80:20 import scheme troubled everyone. There were a series of trials. First it was 20:80, then it became 80:20, and errors done on introducing these rules. This was immature, and it led to loads of grievances. Certain importers could export faster, leading to an imbalance in imports. Fortunately, this is history. Gold loans were at the heart of financing working capital requirements for manufacturers and exporters. But they were discouraged on supplier as well as importer side. Sudden restrictions made cost of borrowing extremely high, thereby eroding profits, margins, and increasing defaults in the market. Gold metal loan has declined from near 70 tons to just 35 to 40 tons on an annual outstanding basis. Restriction on gold loans for intermediaries, for example, bullion dealers, refiners, coin manufacturers, has hampered growth. There is no logic behind not supporting small-time manufacturers of coins and refiners. On 19th November 2012, RBI circular read, "It is advised that no advances should be granted by banks for purchase of gold in any form, including primary gold, gold bullion, gold jewelry, gold coins, units of gold exchange traded funds (ETF), and units of gold mutual funds." However, banks can provide finance for genuine working capital requirements of jewelers. Many large players have exited due to excise issues and ban on sale of coins for those in finance field. Gold loan was sub 2%, and now gold loan is at around 5%, and many have to opt for cash credit, which is around 14%, and risky due to unhedged stock. These sudden changes have led to defaults of a lot of large jewelry companies. Some of them have gone bankrupt,
while others are on the verge of bankruptcy. This may be the main reason for NPA in banking sectors from this industry. To an extent that a report last year, September 2014, classified gem and jewelry sector in the top list of bad loans. At the cost of the industry at large, some jewelers have also taken huge gold loans against fake exports. Such promoters should be punished to avoid ripple effect in the markets. There have been many incidences where companies have lost crores as banks have charged higher duty on gold loan due to lack of clarity on the scheme. For example, one of the leading PSU banks has charged duty on the date of settlement and not on the day of granting of loan. There are lots of difficulties in exports. Impossible to work on replenishment scheme, gold loan restrictions even on export business, absence of any clean duty drawback scheme for jewelry exports, restriction on exports due to many conditions of exports, from pricing to value addition, hand carry not practical from most centers. Time taken on VAT refund sometimes stretches over a year, and this impacts working capital in a large way. Octroi issues at locations like Mumbai. FTA imports of jewelry disturb the market. On one end, pure gold is getting imported at 10%, while free trade agreement countries like Indonesia and Malaysia can export jewelry to India at 1%. This has led to skewed price structure. It disturbed honest and old players the most. There was a huge protest against the policies for imposing excise on all jewelry articles. Though the exemption was given, there still remain certain ambiguities. For most part, refining business is not workable partially due to strange conditions on imports of door bars and ban on import of scrap. Most international players are scared of instability of Indian policies to invest in globally acceptable refineries. Local taxes and VAT issues of trade tax credit is never given on time, while they are collected on time. Similarly, interstate trade is extremely difficult due to low margins and complicated VAT laws. For example, while Kerala has 5% VAT on jewelry, Tamil Nadu has only 1% like most states. This has led to supply of jewelry from Tamil Nadu to Kerala. No industry can survive without bank finance. There is a total non-availability of banking finance to the bullion industry. The Indian bullion market has seen sea changes in the last few years. Various policy changes. Thank you. This was a small presentation जो आज इंडस्ट्री के लास्ट पॉलिसी जब आई थी सरकार की 2012-2011, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि अभी ये एक नया अध्याय है और ये अभी मोदी एरा है। 2014 में जब सरकार बदली तो सरकार का रवैया जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए बदला और बदलने में जो पिलर हैं, आज जिस हिसाब से फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री, भारत सरकार जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को देख रही है, तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में जो पुराने दिन थे स्वर्ण दिवस के, वो कहीं ना कहीं वापस जरूर आएंगे। और दास साहब जैसे लोग जिस हिसाब से गोल्ड इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव है और मोदी सरकार के लिए पिलर की तरह इंडस्ट्री में रिफॉर्म लाने के लिए काम कर रहे हैं, मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने इंडस्ट्री को एक अलग चश्मे से देखा है, अलग एक रूप से देखा है कि इंडस्ट्री का जो आज तक सौतेला व्यवहार लास्ट 10 साल में किया गया, स्पेशली लास्ट 4 साल में किया गया, कम से कम नहीं तो 19 से 20 नोटिफिकेशन आरबीआई लेके आए, पॉलिसी में चेंजेस लेके आए। इवन लास्ट फाइनेंस मिनिस्टर ने इतना रिकमेंड किया कि आप देश में सोना मत खरीदिए, आप देश में सोना इंपोर्ट मत कीजिए, और गोल्ड आप रिटेलर्स गोल्ड को, हम लोग को नोटिफिकेशंस आते थे सरकार की तरफ से, बोला जाता था कि आप एडवर्टाइजमेंट कैंपेन बंद कीजिए, कैट के इश्यूज हैं। इंडस्ट्री को एकदम कहीं ना कहीं एकदम इंडस्ट्री को अकेला कर दिया गया पूरी दूसरी इंडस्ट्रीज से। लेकिन अभी एक रिफॉर्म, एक रिवाइवल की होप ये जागी है। आज कितनी मीटिंग्स में जब हमारे डेलीगेशंस जाते हैं, सरकार पूछती है, तो हम लोग को भी काफी फील होता है कि दोबारा गोल्ड इंडस्ट्री की तरफ से आज जिस हिसाब से इकोनॉमी में सोने की इंडस्ट्री का पूरा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण, मैं कहूँगा, सपोर्ट है, उसको दोबारा जागरूक करने के लिए सरकार काम कर रही है।
और लास्ट ही कुछ पिछले महीने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम हो, गोल्ड बॉन्ड स्कीम हो या गोल्ड कॉइन्स की जो सरकार स्कीम लेके आई, तीनों स्कीम आने वाले समय में एक नया अध्याय लिखेगी। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को आज हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम सक्सेस होने के बाद 5 साल 10 साल बाद जब भारत सरकार में ये टेन्योर का जब इतिहास लिखा जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश की छवि, देश की इकोनॉमी बदलने के लिए ये स्कीम का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। सरकार ये स्कीम को कामयाब करने के लिए आज दास साहब गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को कामयाब करने के लिए हमारे बीच में वो स्कीम को कैसे सक्सेस कर सकते हैं, और हमारा कर्तव्य बनता है कि जो डम गोल्ड हम बात करते हैं 20,000 करोड़ का डम गोल्ड जो देश में इकोनॉमी में पड़ा हुआ, उसको रीयूटिलाइज करके सरकार के उपयोग में कैसे ला सकते हैं, उसके लिए हमको सरकार के साथ काम करना चाहिए। अपनी स्पीच में साहब इस चीज को पूरा कवर करेंगे। और आज एसोसिएशन के माध्यम से जिस हिसाब से एसोसिएशन सरकार और हमारे कंज्यूमर्स और रिटेलर्स और होलसेलर्स के बीच में एक माध्यम रहती है कि सरकार की पॉलिसी को लोगों तक लेके जाएं, हमारे मेंबर्स तक लेके जाएं, उसके लिए भी हम दिन रात काम कर रहे हैं, आगे काफी चेंजेस कर रहे हैं। सर, ये एक रिफॉर्म है जो देश में जरूरत है। काफी 2-3 बातें हैं जो आज तक अद्भुत हैं, लेकिन आज जब थोड़ा सा सपोर्ट हमको सरकार की तरफ से दिखता आ रहा है, पॉजिटिव इंडस्ट्री की तरफ से, तो कुछ बातें मैं भी आपको कहना चाहूंगा कि ये रिफॉर्म के रूप में जरूर आनी चाहिए। आज देश में जब बैंकिंग इंडस्ट्री है, बैंकिंग में आप टूरिज्म फाइनेंस को भी TFCI देखिए, आज एक पूरा बैंक है जो आज होटल्स को फाइनेंस करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बैंक्स हैं, हाउसिंग लेंडिंग बैंक्स हैं, क्यों नहीं हमारे पास एक गोल्ड बैंक होना चाहिए। मैं सर ये माध्यम से, ये मंच के माध्यम से आपसे डिमांड करता हूं कि आप एक नेशनलाइज गोल्ड बैंक का एक गठन कीजिए, जिसके अंदर सरकार की पॉलिसी है, चाहे गोल्ड मोनेटाइजेशन, गोल्ड डिपॉजिट, लेंडिंग करना है ज्वेलर्स को। आज साउथ में देखेंगे छोटे छोटे ज्वेलर्स फंड्स लेते हैं, वो फंड्स को हम बैंक में ले सकते हैं और एक स्पेशलाइज्ड डेडिकेटेड बैंक हमारे ज्वेलर्स के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए हो। आज 30 लाख करोड़ के सोने की बात करते हैं, 2 लाख करोड़ का सोना, 1000 टन का सोना हर साल इंपोर्ट होता है। बिजनेस पूरे इंडिया में आज हर गांव में बिजनेस है सोने के। एक डेडिकेटेड नेशनलाइज गोल्ड इंडस्ट्री का बैंक हो, जिस हिसाब से वुमेन्स बैंक है, दूसरे अन्य एग्रीकल्चर बैंक है, वैसे एक गोल्ड इंडस्ट्री का बैंक हो, मैं आपसे डिमांड करता हूं। और जब भगवान ने बोला है मांगो तो बहुत कुछ मांगो, तो थोड़ा सा और बढ़ के चढ़ के बोलना चाहूंगा सर आपसे कि आज देश में इतनी मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, कोल की मिनिस्ट्री है, टेक्सटाइल की मिनिस्ट्री है। आज हमारे पास इंडस्ट्री का बिजनेस साल का कम से कम 7 से 8 लाख करोड़ का बिजनेस है जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री का। आप डायमंड को एग्रीगेट कर लेंगे तो पूरे देश में ये 15 लाख करोड़ से ज्यादा का धंधा है। आज अगर सोने की इकोनॉमी में देखेंगे तो डायमंड की इकोनॉमी में आप रोल देखेंगे तो 7% GDP में जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री का रोल है, 13% एक्सपोर्ट में इंडस्ट्री का रोल है, लेकिन हमारे पास एक मिनिस्ट्री नहीं है। आज स्किल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री देश में बनी, 1200 करोड़ रुपए का उनको बजट देके इंडस्ट्री बनाई गई, लेकिन ओवरऑल जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री क्या रोल प्ले कर सकती है इकोनॉमी में, क्या रोल प्ले कर सकती है आने वाले समय में देश की इकोनॉमी को, वर्ल्ड में इंडिया की इकोनॉमी को दूसरी कंट्री की इकोनॉमी से आगे बढ़ाने में जो जेम्स एंड इंडस्ट्री का रोल हो सकता है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि दास साहब के थ्रू ये चीज एक आगे मोदी सरकार में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को ये चीज पुटअप हो कि एक कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री का भी सोचना चाहिए। काउंसिल तो ठीक है, साहब बैठे हैं यहाँ पे, उन्होंने डोमेस्टिक काउंसिल के लिए प्रयत्न किया, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के वजह डोमेस्टिक प्रमोशन काउंसिल भी देश में होना चाहिए, लेकिन सर इतनी बड़ी इंडस्ट्री को एक नेतृत्व चाहिए। आज हमारे पास एक प्रमोशन काउंसिल, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, बस आज आप कॉटन टेक्सटाइल को देखेंगे 9 काउंसिल है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री की सरकार में बात रखने के लिए सरकार के साथ पूरे आज 40 लाख वर्कर, 5 लाख ज्वेलर्स, 5 लाख रिटेल शोरूम्स पूरे इंडिया में है, लेकिन कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि यहाँ की तकलीफ, यहाँ की प्रॉब्लम, डे टू डे रूटीन की बिजनेस इशू सरकार तक रख सके। तो मैं ये माध्यम से, जिस हिसाब से आज रिफॉर्म देश में आ रहा है, आज चेंजेस देश में आ रहा है, जिस हिसाब से नए एक देश को एक नया इंडिया, स्किल इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, तो इस माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा साहब, इसके आप जरूर इस पे ध्यान दें। और इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन हमेशा सरकार की पॉलिसी के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ है। हमने गोल्ड मोनेटाइजेशन पॉलिसी को और आगे तक घर घर ले जाने के लिए एक कल ही बोर्ड मीटिंग में एक नया
बदलाव लेके आए हैं। एक ईजीएम कॉल किए सर हमने अभी नेक्स्ट मंथ, और न्यू फ्रेश इलेक्शंस को हम लोग मार्च में जा रहे हैं पूरे बोर्ड के। और इंडिया बुलियन एसोसिएशन में भी 20 गवर्निंग डायरेक्टर्स होते थे पूरे इंडिया में से। सर हमने इस पूरी बॉडी को चेंज करके इंडिया के हर स्टेट में से एक स्टेट प्रेसिडेंट, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट और 7 डायरेक्टर्स हर सिटी में से हो, ऐसे 300 हमारे पास पूरे बोर्ड में हर सिटी में से डायरेक्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एसोसिएशन के साथ जुड़ेंगे। एक गवर्निंग बोर्ड रहेगा देश का। 300 ऑफिसेज जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के एसोसिएशन के 300 शहरों में रहेंगे। सरकार की जो पॉलिसी है, चाहे बॉन्ड की पॉलिसी है प्रमोट करने की, कॉइन्स की पॉलिसी है, आगे सरकार कोई नई पॉलिसी लेके आती है तो हर एक छोटे गांव, छोटे शहर तक सरकार की पॉलिसी हमारे एसोसिएशन के माध्यम से पहुंचे। ये एक नई हम योजना लेके आए, जो नया बोर्ड हम मार्च में गठन करके 450 लोग का पूरे इंडिया में से जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री का बोर्ड आपको मिलेगा, जिसमें माइनिंग से लेके, कमोडिटी एक्सचेंज से लेके, रिटेल से लेके, होलसेलर से लेके, स्मॉल मैन्युफैक्चरर, जेम, कलर स्टोन, डायमंड, सबको साथ में रख के सरकार की जितनी लोगों की इश्यूज जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के, वो उसको आपके आगे रखें। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, हमारे पास स्पीकर्स है जो बोलना चाहेंगे, लेकिन इतना वाक्य जरूर बोलना चाहूंगा मैं कि आप आंखें डोनेट कर सकते हैं, यू कैन डोनेट द आईज बट यू कैन नॉट डोनेट द विजन। एंड आई थिंक दास साहब का जो विजन जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए है वो बहुत क्लियर है। 63,000 एप्लीकेशन बॉन्ड के अंदर आई, 956 किलो सोने का एप्लीकेशन 1 महीने के अंदर सोविजन बॉन्ड के अंदर सरकार को रिसीव किया। इसके पूरा कोई अगर इसका किसको अगर थैंक्स करना चाहिए तो दास साहब को करना चाहिए कि एक नई पॉलिसी को बॉन्ड के रूप में वो सरकार के आगे लेके आए हैं। और ऐसे अगर सेक्रेटरी देश में रहे तो जो देश के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं तो वो तो देश के लिए एक फेस होते हैं, लेकिन जो पीछे काम करने वाले जो आज पूरा लोग होते हैं, चाहे दादू साहब हैं, वो भी काफी डायनामिक कॉमर्स मिनिस्ट्री में है, और उनका विजन जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए एकदम क्लियर है। गोल्ड इंडस्ट्री, डायमंड इंडस्ट्री सर बहुत ही सेग्रीगेट है। मैंने ये बात एक बार कॉमर्स मिनिस्ट्री में रखी थी, लेकिन मेरी बात को थोड़ा अलग रूप से लिया गया। मैंने बात को रखा था कॉमर्स मिनिस्ट्री में सर कि डायमंड इंडस्ट्री और गोल्ड इंडस्ट्री, प्रेशियस मेटल और कलर स्टोन्स इंडस्ट्री इतनी डिफरेंट है जितनी रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री एकदम डिफरेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री एकदम डिफरेंट है। वैसे सर प्रेशियस मेटल, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ये इंडस्ट्री पूरी अलग है। क्यों ना सर एक प्रेशियस मेटल के लिए काउंसिल आप बनाइए और एक डायमंड वालों के लिए काउंसिल बनाइए, कलर स्टोन्स वालों के लिए काउंसिल बनाइए। उसके अंदर आप कलर स्टोन्स को, डायमंड को एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों का उनको दायित्व दीजिए, और जेम्स एंड ज्वेलरी प्रेशियस मेटल वालों को, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम और पैलेडियम वालों को आप एक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों का महत्व दीजिए। मैं आपको बताता हूँ ये इंडस्ट्री बहुत आशा रखती है सरकार के साथ, और आने वाले समय में आपके साथ जो आपकी महत्वाकांक्षा रहेगी इंडस्ट्री के रूप में हम हमेशा सरकार के साथ हैं। और आने वाले समय में देश की नई ऊंचाई में जितने आज इश्यूज हैं वो तो सॉर्ट आउट होंगे ही, कहीं ना कहीं इसको आगे आके धीरे धीरे करके इंडस्ट्री दोबारा ट्रैक पे आएगी। और मैं से अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।